Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. You know that 4th April 2022, Odisha Adarsh Vidyalaya Sangathan Principal Exam 2022 was conducted. And in this exam, 70 MCQ questions we are asked related to the administration and finance. So today I will discuss 70 multiple choice questions related to the administration and finance. And you know that Odisha Adarsh Vidyalaya, it is a model school. It is a CBSE school in government of Odisha. So my friends, please go through the video till the end so that you can collect some important informations and you know the latest pattern of the exam. So now I am going to discuss 70 multiple choice questions related to the Odisha Adarsh Vidyalaya Principal Exam 2022. You see the question number 1. You see the question number 1. Under Rule 11 of the Central Civil Services Classification Control Appeal CCA rules, government servants can be subjected to penalties which can be minor as well as major. Which of the following is not a minor penalty? जो 4 ऑप्शंस है इसमें कौन सा माइनर पेनल्टी में नहीं आएगा? विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, डिमोशन फ्रॉम पोस्ट होल्डिंग, सेंसियोर, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे. देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो 2 है. आंसर इज बिट 2 because you know that withholding of promotion, it is a minor penalty. जो demotion from post holding, it is a major penalty. Okay, third one, censure, it is a minor penalty. Withholding of increment also a minor penalty. But question is asking which of the following is not a minor penalty? It is demotion from post holding. So answer is 2. Right? चलो question number 2. Question number 2. According to Rule 12C of the Fundamental Rules, a government servant cannot be appointed to a post on which another government servant, 4 options, holds a lien, holds a claim, has already retired, has filed a case. So answer is bit 1, right? Holds a lien. According to Rule 12C of the Fundamental Rules, a government servant cannot be appointed to a post on which another government servant holds a lien. यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी लियन में है तो इस जगह में और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट नहीं दिया जा सकता. तो आंसर इज बिट 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. अंडर रूल 11 Central Civil Services Pension Rules 2021, qualifying service of a government servant is said to commence from. So CCS Pension Rules 2021, you know that in 2021 December 20, pension rules, old pension rules modified. So यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, qualifying service of a government servant is said to commence from 4 options: the day he joins any substantive post, any permanent appointment, the date he takes charge of the post to which he is first appointed either substantively or in an officiating or temporary capacity, or 4th one, the date he takes charge of the post to which he is first appointed irrespective of permanent or temporary. तो यहाँ पर जो आंसर है एक्चुअली आंसर इज बिट 3. यू सी द डेट ही टेक्स चार्ज ऑफ द पोस्ट टू विच ही इज फर्स्ट अपॉइंटेड आइदर सब्सटेंटिवली और इन एन ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी कैपेसिटी. तो इसमें जो क्वालिफाइंग सर्विस जो काउंट होगा, ओके, एक्चुअली जिस डेट में जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा सब्सटेंटिवली और ऑफिशिएटिंग मैनर और टेम्पररी कैपेसिटी, तो उसी से एक्चुअली क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होगा. तो आंसर इज बिट 3. चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 4.
It is related to the GFR, General Financial Rule. According to Rule 144, the fundamental principle of public procurement states every authority delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy and dash in matters relating to public procurement, right, and for fair and equitable treatment of suppliers and promotion of competition in public procurement. तो ये जो अकॉर्डिंग टू रूल 144 है, यहाँ पर एम्फासाइज किया है बेसिकली efficiency, economy and dash in matters relating to public procurement. Some principles are there. You see GFR 144, Rule 144, some principles are there. 4 options given: proficiency, transparency, reasonability, productivity. Answer is bit 2. It is transparency. Efficiency, economy and transparency in matters relating to public procurement. बहुत easy है. Okay. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो शैल हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू ब्रिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड ट्रांसपेरेंसी. तो बेसिकली आंसर इज बिट 2 इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, as required by rule 10 of the CCA rules, again Central Civil Services Classification, Control and Appeal rules, which of the following is not a ground for suspension? ऐसा कौन सा ग्राउंड है जिसमें कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस गिवन: where person has been found as incapable to perform his duties, where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial, where in the opinion of the authority aforesaid he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the state. आप देख लीजिए जो बीट है 2, 3, 4, ये तीनों केस में एक्चुअली सस्पेंशन होगा. डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और इज पेंडिंग, इसमें सस्पेंशन होगा. वेयर ए केस अगेंस्ट हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, इसमें भी सस्पेंशन होगा. Where in the opinion of the authority aforesaid he has engaged himself in some activities prejudicial to the interest of the security of the state, ये केस में भी सस्पेंशन होगा. और क्वेश्चन पूछा है कौन सा ग्राउंड में सस्पेंशन नहीं होगा, तो आंसर इज बिट 1. राइट. कौन सा ग्राउंड में सस्पेंशन नहीं होगा पूछा है क्वेश्चन. क्लियर. आप और एक बार देख लीजिए. रिक्वायर्ड बाय रूल 10 ऑफ द CCA रूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर सस्पेंशन. इसमें जो 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसमें कौन सा ग्राउंड में सस्पेंशन नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा बिट 1 होगा. वेयर पर्सन हैज बीन फाउंड एज इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज. ओके, ये केस में सस्पेंशन नहीं होगा. जो आंसर है बेसिकली बिट 1 है. वेयर पर्सन हैज बीन फाउंड एज इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, इस केस में सस्पेंशन नहीं होगा, तो आंसर इज बिट 1. और दर तीनों केस में सस्पेंशन होगा. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द CCA रूल्स. बेसिकली प्रेजेंटिंग ऑफिसर, यू नो, जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलता है तब जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है. और प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स का काम है कि जो भी इम्प्यूटेशन ऑफ स्टेटमेंट है और जो भी आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस है, एक्चुअली वो इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने उसको सबमिट करेगा और वो प्रूव करने के लिए ट्राई करेगा कि जो चार्ज ऑफिसर है वो एक्चुअली कल्प्रिट है. तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर उसको प्रयास करेगा कि चार्ज ऑफिसर कल्प्रिट है, तो जो भी एविडेंस है वो इंक्वायरी ऑफिसर के सामने रखेगा. तो देखेंगे 4 ऑप्शंस. व्हाई इज द प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द CCA रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स, टू प्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द केस इन सपोर्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, to defend the state, to defend the civil servant, to represent the concerned department where the government servant is employed. तो आंसर इज बिट 1. to present on behalf of the disciplinary authority the case in support of the articles of charge. जो भी articles of charges लगा है, जो अक्यूज्ड ऑफिसर है, जो चार्ज ऑफिसर के ऊपर जो भी आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस लगा है, उसको प्रूव करने के लिए एक्चुअली प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंट किया जाता है. तो ऑन बिहाफ ऑफ द बेसिकली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर providing all the evidences related to the articles of charge. Okay, तो आंसर इज बिट 1.
राइट, बहुत इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इजी है। एज पर रूल 155 ऑफ द जनरल फाइनेंशियल रूल, ये लोकल परचेजिंग कमेटी बेसिकली एलपीसी के ऊपर है। जो 154 है वो बेसिकली जो है विदाउट कोटेशन, और जो रूल 155 है बेसिकली जो लोकल परचेज कमेटी 3 मेंबर्स होते हैं उसके ऊपर है। एज पर रूल 155 ऑफ द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग अबव ₹25,000 and dash on each occasion may be made on the recommendation of a daily constituted local purchase committee LPC। तो यू नो दैट जो LPC केस में बेसिकली अबव ₹25,000 एंड अप टू 2.5 लाख, ओके, अप टू 2.5 लाख, आंसर इज बिट 3। ओके, बहुत इजी है, राइट। तो लोकल परचेज कमिटी बेसिकली जब जो भी गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा उसका वैल्यू मोर देन 25,000 एंड अप टू ₹2.5 लाख, तो वहाँ पर लोकल परचेज कमेटी मार्केट जाएंगे, मार्केट से वो कोटेशंस लाएंगे और कोटेशंस को एनालाइज किया जाएगा, राइट। तो जिसका लीस्ट कॉस्ट होगा और जिसका स्पेसिफिकेशंस अच्छा होगा, क्वालिटी होगा, तो उसको अल्टीमेटली इट मीन्स अल्टीमेटली वो बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ रूल 155 में है एलपीसी के ऊपर, आंसर इज बिट 3। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अगेन द सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 प्रोहिबिट्स प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, prohibits private trade and employment for government servants under rule 15, which of the following is not a restriction imposed under the rule। जो कंडक्ट रूल आप देखिए, जो रूल 15 है इट इज रिलेटेड टू द प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, which of the following is not a restriction imposed under the rule, 4 options given, negotiate for or undertake any other employment, engage directly or indirectly in any trade or business, canvass in support of any business of insurance agency, commission agency etc. owned or managed by any member of his family, last one engage in any profitable activity of PSUs। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, जो अंडर रूल 15 है प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन, ये रूल के अंडर में नहीं आएगा। जो रूल 15 है इट इज रिलेटेड टू द प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, इस रूल के अंडर में नहीं आएगा। तो आंसर बेसिकली 4 होगा, बिट 4। engage in okay any profitable activity of PSUs, आंसर इज बिट 4। ये एक्चुअली रूल 15 के अंडर ए रेस्ट्रिक्शंस में नहीं आएगा, राइट। अदर जो फर्स्ट 1 2 3 है वो एक्चुअली अंडर रूल 15 में वो आएगा रेस्ट्रिक्शंस में, मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर द रूल, ओके, आंसर इज बिट 4, engage in any profitable activity of public sector undertakings। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये जो क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली ऑल इंडिया सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स 1954 हैज बीन एनैक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर। एक्चुअली हमारे लिए जो ट्रैवलिंग अलाउंस बेसिकली है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ओके, बेसिकली सेंट्रल सिविल सर्विसेज, मगर ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस उनके लिए है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ऑल इंडिया सर्विसेज टीए रूल्स 1954 हैज बीन एनैक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर, 4 options given, section 3(1) of the All India Services Act 1951, section 2 of the All India Services Act 1951, section 4, then section 3(2). ये जो 4 options है, आंसर इज एक्चुअली 1 है, section 3(1) of the All India Services Act 1951। मगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, मगर हमारा जो टीए रूल है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है बेसिकली मैं बताया, बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस उनके लिए है, तो हमारे लिए नहीं है, मगर ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर जो है सेक्शन बेसिकली 3(1) ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951, ओके, तो इसके हिसाब से एक्चुअली ऑल इंडिया सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स 1954 हैज बीन एनैक्टेड, राइट। तो आंसर इज बिट 1। चलो क्वेश्चन नंबर 10, अंडर LTC रूल्स द होम टाउन वंस डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। In exceptional circumstances, a change in such declaration and provided that such a change shall not be made during the service of a government servant। तो 4 options given, इसके ऊपर थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ। ऑलरेडी हम होम टाउन डिक्लेयर कर चुके हैं LTC के लिए, और सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में हम एक बार उसको चेंज कर सकते हैं होम टाउन को, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस।
ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस है जो बहुत एक्सेप्शनल है। तो इस केस में हम एक बार हमारा जो होम टाउन है एलटीसी के लिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ए चेंज इन सच डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड दैट सच ए चेंज शैल नॉट बी मेड ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट मोर देन वंस, जो है बिट 4 है आंसर। ओके, एक बार ही चेंज कर सकते हैं, मोर देन वंस नहीं होगा। तो वही पूछा है क्वेश्चन, सच ए चेंज शैल नॉट बी मेड ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट मोर देन वंस। आपको याद रखना है कि जो होम टाउन जो हम दिया है उसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस एक बार ही चेंज कर सकते हैं। ओके, और इसको चेंज कर सकता है बेसिकली हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर बिट 4 है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 11, रूल 158 जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 रिक्वायर्स परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बीड्स। अंडर द सेड रूल द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बीड्स इज फॉलोड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो रूल 150 है, डिफरेंट वेज में हम बिडिंग को इनवाइट करते हैं, बेसिकली लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, टू बिड सिस्टम, टू स्टेज बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन टूल, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिडिंग है। तो आपको याद रखना है जो जनरल फाइनेंशियल रूल 158 में दिया है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इनवाइट द बिड्स, लिमिटेड टेंडर, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, ओके, देन टू बिड सिस्टम, टू स्टेज बिडिंग, ओके, रिवर्स ऑक्शन टूल, ओपन टेंडर इंक्वायरी, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, ये सब है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो बिडिंग सिस्टम बताया आप पूरा क्लियर, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, टू स्टेज बिडिंग है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी है, रिवर्स ऑक्शन टूल है, ठीक है, फिर टू बिड सिस्टम है, ओके, मगर नॉन एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी नहीं है। तो आंसर इज बिट 4, ये नहीं है, एक्सेप्ट वो पूछा है। ओके, इसमें सभी रूल 158 में है, डिफरेंट वेज में जो हम बिडिंग को इनवाइट करते हैं, बेसिकली जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है, जो गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी है, वो इनवाइट करता है डिफरेंट वेज में, लिमिटेड टेंडर, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, टू स्टेज बिडिंग, टू बिड सिस्टम, सिंगल टेंडर इंक्वायरी एंड रिवर्स ऑक्शन टूल। तो नॉन एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आंसर इज बिट 4। चलो क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू FR 24 an increment is ordinarily drawn as a matter of course unless it is withheld. When can it be withheld? जो FR 24 में क्लियरली मेंशन है कि किस सिचुएशन में हमारा इंक्रीमेंट को विथहेल्ड किया जाएगा। बेसिकली ऑर्डिनरली हम इंक्रीमेंट ड्रॉ करते हैं, अभी जो है बेसिकली जनवरी 1 और जुलाई 1 जो भी है, सपोज अभी जैसे हमारा जुलाई 1 में इंक्रीमेंट लगता है, तो वैसे ऑर्डिनरली ड्रॉन एज ए मैटर ऑफ कोर्स अनलेस इट इज विथहेल्ड। व्हेन कैन इट बी विथहेल्ड? जो FR 24 में, फंडामेंटल रूल 24 में ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसमें इंक्रीमेंट को विथहेल्ड किया जाएगा? 4 ऑप्शंस गिवन, व्हेन ही हैज एक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर्स, व्हेन देयर हैज बीन एनी कंप्लेंट मेड अगेंस्ट हिम, व्हेन हिज कंडक्ट हैज नॉट बीन गुड और परफॉर्मेंस नॉट सैटिस्फैक्टरी, व्हेन ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग। तो आंसर इज बिट 3, व्हेन हिज कंडक्ट हैज नॉट बीन गुड और परफॉर्मेंस नॉट सैटिस्फैक्टरी। जब कंडक्ट अच्छा नहीं होगा और परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, इस केस में इंक्रीमेंट को विथहेल्ड किया जा सकता है। जब कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंडक्ट अच्छा नहीं होगा और उसका परफॉर्मेंस जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, तब उसका इंक्रीमेंट को विथहेल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर बिट 3 है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13, द लीव ट्रैवल कंसेशन अगेन LTC के ऊपर है, शैल बी एडमिसेबल ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ लीव इंक्लूडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हम जानते हैं कि जो हम LTC लेंगे, लीव ट्रैवल कंसेशन हमको मिलता है ओनली लीव पीरियड में ही मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे 4 ऑप्शन है, कैजुअल लीव एंड स्पेशल कैजुअल लीव, क्वारंटाइन लीव, हाफ पे लीव, मेडिकल लीव। बेसिकली जो आंसर है 1 है, कैजुअल लीव एंड स्पेशल कैजुअल लीव, CL एंड बेसिकली जो है SCL, स्पेशल कैजुअल लीव। ये जो पीरियड में जो आंसर 1 में, इसमें लीव ट्रैवल कंसेशन एडमिसिबल होगा, क्योंकि बेसिकली लीव पीरियड में हमको LTC लेना है। तो आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन, कैजुअल लीव एंड स्पेशल कैजुअल लीव। ओके, यहाँ पर जो आंसर होगा वो बिट 1 होगा, बिट 1 होगा, राइट। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर है, बहुत इजी है। आप कंडक्ट रूल देख लीजिए, कंडक्ट रूल का रूल 3C, ठीक है, रूल 3C में सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर है।
आप देख लीजिए रूल 3C कंडक्ट रूल का, इसमें सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर है। सेक्सुअल हरासमेंट अकॉर्डिंग टू CCS कंडक्ट रूल्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। CCS कंडक्ट रूल्स में जो सेक्सुअल हरासमेंट में क्या इंक्लूड ये सब दिया गया है, मगर इसमें एक ऑप्शन है जो इसमें एक्चुअली वो नहीं आएगा। सेक्सुअल हरासमेंट अकॉर्डिंग टू द CCS कंडक्ट रूल्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सभी इंक्लूड होगा सेक्सुअल हरासमेंट में, मगर एक ऑप्शन है जो इंक्लूड नहीं होगा। देखेंगे शोइंग पोर्नोग्राफी, ये सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड होगा। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, ये भी इंक्लूड होगा। आस्किंग फेवर्स टू ग्रांट कैरियर एडवांसमेंट, ये एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आएगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ये भी आएगा। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया, आंसर इज बिट 3, आस्किंग फेवर्स टू ग्रांट कैरियर एडवांसमेंट। इस केस में एक्चुअली ये सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 15, टू ensure due performance of the contract, performance security is to be obtained from the successful bidder awarded the contract under rule 171 of the general financial rules 2017. performance security should be for an amount of, तो ये बहुत इजी है। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो फाइनली जो बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया उसमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिया जाएगा। फाइनली जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, फाइनली जिस बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया उससे हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रखेंगे, तो वो कितना % होगा। बेसिकली जो कमर्शियल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है, ओके, उसके हिसाब से होता है। तो जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो जिस बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो कितना % देगा, ठीक है। और तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्यों लिया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली लिया जा सकता है क्योंकि हम उसका सर्विस को देखते हैं, वो कैसे सर्विस डिलीवरी करता है, और हमको जो वारंटी है, जो गारंटी है, उस पीरियड में हमको सब कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो हमको एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं, ये सब देखेंगे। तो बेसिकली बहुत इजी है। बेसिकली इसका जो आंसर है 5 to 10%, 5 to 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज स्पेसिफाइड इन द बिड डॉक्यूमेंट्स। जो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका 5 to 10% वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देगा। ये रूल 171 में है, और जो बीड सिक्योरिटी है वो रूल 170 है। GFR का आप रूल 171 देख लीजिए, वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के ऊपर है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा उसका 5 to 10% उसको देना पड़ेगा। ये जो 5 to 10% जो है ये क्या है, बेसिकली कमर्शियल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट को देख के एक्चुअली डिसाइड होता है, मगर बेसिकली वो 5 to 10% ही होता है, उसके अंदर ही होता है। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया, आंसर इज बिट 2, ये बहुत ईजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, under FR 121, under fundamental rule 121, can a government servant transferred to a foreign service be entitled to pension from a foreign employer? यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो फॉरेन सर्विस में सपोज डेपुटेशन में चला जाता है और उसका रिटायरमेंट हो जाता है, क्या फॉरेन एम्प्लॉयर से उसको पेंशन मिलेगा? यही क्वेश्चन पूछा है। क्या ने गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर्ड टू ए फॉरेन सर्विस बी एंटाइटल्ड टू पेंशन फ्रॉम ए फॉरेन एम्प्लॉयर? ये भी बहुत इजी है, और इसमें जो आंसर होगा बिट 1 होगा, ओनली विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा, जब गवर्नमेंट सर्वेंट वो फॉरेन सर्विस में है और उसका रिटायरमेंट हो गया, तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा तब उसका जो फॉरेन एम्प्लॉयर है वो उसको पेंशन देगा, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर है बिट 1 है, ये भी बहुत इजी है, राइट। ओनली विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, आंसर इज बिट 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। आंसर इज बिट 1। चलो क्वेश्चन नंबर 17, as provided under the Central Services Medical Attendance Rules 1954, a government servant desirous of availing of medical treatment outside India may make an application through the department or ministry under which the government servant is attached to each of the following. 4 options given: the council which is established for this purpose, nearest government hospital, standing committee established under this rule in the form specified by the standing committee, concerned authority established under the rule. ये भी यदि ऐसा कुछ डिजीज सीरियस होता है, जैसे कोई कैंसर है, ल्यूकेमिया और बोन मैरो ट्रीटमेंट, ये सब जो क्रिटिकल डिजीज है, तब गवर्नमेंट सर्वेंट अब्रोड में ट्रीटमेंट कर सकता है, मगर ऑटोमेटिकली नहीं होगा। एक स्टैंडिंग कमिटी बनेगा, ओके, स्टैंडिंग कमिटी बनेगा। स्टैंडिंग कमिटी में सब मेंबर रहेंगे, जैसे
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो डायरेक्टर है वो रहेंगे, जैसे जो बेसिकली आर्मी डिपार्टमेंट का जो हॉस्पिटल्स है उसका डायरेक्टर जनरल रहेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का बेसिकली डायरेक्टर रहेंगे, ये सब मेंबर एक स्टैंडिंग कमेटी होता है। बेसिकली यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। तो स्टैंडिंग कमेटी एक्चुअली अप्रूव करेगा। स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव करने के बाद वो गवर्नमेंट सर्वेंट जाकर अब्रोड में ट्रीटमेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है बिट 3 है। स्टैंडिंग कमेटी एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस रूल इन द फॉर्म स्पेसिफाइड बाय द स्टैंडिंग कमेटी, आंसर इज बिट 3। तो यहाँ पर एक स्टैंडिंग कमेटी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट होगा और स्टैंडिंग कमेटी जो डिसाइड करेगा हाँ ये डिजीज एक्चुअली बहुत क्रिटिकल है और उसका ट्रीटमेंट होगा अब्रोड में, तब हो सकता है, राइट। तो आंसर इज बिट 3। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन अकॉर्डिंग टू द CCA रूल्स डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मीन्स, आप देख लीजिए बेसिकली जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील, आप रूल 12 देख लीजिए, इसमें क्लियरली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड अंडर रूल 11 ऑफ द CCA रूल्स, ये एक सही है। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सेक्रेटरी टू द प्लानिंग कमीशन नहीं है, तो आंसर इज बिट 1 है। ओके, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अल्टीमेटली जब इंक्वायरी अथॉरिटी है वो जब रिपोर्ट देता है और उसको एनालाइज करने के बाद ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्चुअली वो पेनल्टी इंपोज करता है अंडर रूल 11। रूल 11 में एक्चुअली जो CCA रूल्स है वो माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी दिया गया है। रूल 10 एक्चुअली सस्पेंशन के ऊपर है और रूल 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनल्टीज के ऊपर है। सो अल्टीमेटली द अथॉरिटी इज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ओके, हैज पावर टू इम्पोज पेनल्टी, ओके, ऑन द चार्ज ऑफिसर और अक्यूज्ड ऑफिशियल। तो आंसर इज बिट 1, ये बहुत ईजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, the procedure to be followed in making public procurement under the General Financial Rules 2017 must conform to all of the following yardsticks except, सभी यार्डस्टिक्स को हम लेंगे मगर एक को छोड़ के। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जब हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी है जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करेगा तब इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें सभी यार्डस्टिक्स को लिया जाएगा, मगर इसमें एक ऑप्शन होगा जो वो यार्डस्टिक्स में नहीं आएगा। देखेंगे, द डिस्क्रिप्शन शुड इंडिकेट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड। केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू अवॉइड परचेजिंग क्वांटिटीज इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट टू अवॉइड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। ऑफर शुड बी इन्वाइटेड फॉलोइंग ए फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर। नेक्स्ट वन, 4th one, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, जेनेरिक एंड मेजरेबल एंड स्पेसिफाई टेक्निकल, क्वालिटेटिव एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 4 ऑप्शन दे दिया गया। इसमें आप देख लीजिए बेसिकली जो आंसर होगा बिट 1 होगा, बिकॉज आप देखिए जो ऑप्शन 2, 3, 4 है वो एक्चुअली यार्डस्टिक्स है, जब हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट करेंगे उसको फॉलो करना चाहिए। केयर, देखिए 2 है ऑप्शन है, केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू अवॉइड परचेजिंग क्वांटिटीज इन एक्सेस। हम एक्सेस नहीं परचेज करेंगे क्योंकि एक्सेस परचेज करने से हमको कैरिंग कॉस्ट लगेगा। सिमिलरली ऑफर शुड बी इन्वाइटेड फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर में हम एक्चुअली प्रोक्योर करेंगे। सब डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, जेनेरिक एंड मेजरेबल एंड स्पेसिफाइड टेक्निकल, क्वालिटेटिव एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टर, ये भी यार्डस्टिक में आता है। तो फर्स्ट वन नहीं आएगा। इसमें कोई हम ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम, ब्रांड नेम नहीं देंगे। जब हम कोई प्रोक्योर करेंगे तब जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हम एडवर्टाइज में देंगे, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हमारा वेबसाइट में अपलोड करेंगे कि सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के जेम पोर्टल में हम अपलोड करेंगे, तो उसमें एक्चुअली हम पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड ये नहीं देंगे। तो ये एक्चुअली यार्डस्टिक्स में नहीं आएगा। आंसर इज बिट 1। ओके, आंसर इज बिट 1, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिक्लेयर्ड सर्विस क्लियर अंडर 66E ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट 1994। ये बेसिकली सर्विस टैक्स के ऊपर है। Which of the following is not a declared service under section 66E of the Financial Act 1994? Courier agency, construction of a civil structure, construction of a complex, renting of immovable property। एक्चुअली यहाँ पर दिया है ऐसा कौन सा सर्विस है जो अंडर सेक्शन 66E ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट 1994 में नहीं है,
उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। आंसर इज बिट 1, कोरियर एजेंसी नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिविल स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब है। ओके, ये सब सर्विस में आएगा, मगर कोरियर एजेंसी वो नहीं आएगा। अब देख लीजिए सेक्शन 66E ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट 1994, इसमें क्लियरली मेंशन है। जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है वो है, ठीक है, मगर कोरियर एजेंसी को एक सर्विस के आकार में डिक्लेयर नहीं किया गया। तो आंसर इज बिट 1। यहाँ पर वही दिया है, which of the following is not a declared service under section 66E of the Financial Act 1994। तो बेसिकली कोरियर एजेंसी को एक सर्विस के आकार में डिक्लेयर नहीं किया गया अंडर सेक्शन 66E ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट 1994। तो आंसर इज बिट 1। ओके, और सभी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है ये सब सर्विस डिक्लेयर किया गया है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये बहुत इजी है, एनपीएस के ऊपर, नेशनल बेसिकली पेंशन पॉलिसी के ऊपर है, जो एनपीएस सिस्टम के ऊपर है, न्यू पेंशन सिस्टम। टायर 1 अकाउंट अंडर द न्यू पेंशन स्कीम हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स? लिक्विडिटी इन इन्वेस्टमेंट, अनस्टेबल पेंशन, रेस्ट्रिक्टेड विथड्रॉल, अनलिमिटेड विथड्रॉल। तो आंसर इज बिट 3, रेस्ट्रिक्टेड विथड्रॉल, क्योंकि हम पूरा सर्विस पीरियड में 3 बार हम एक्चुअली विथड्रॉल कर सकते हैं, और उसमें भी हमको पर्पस देना पड़ेगा, और ईच टाइम हमको जो हमारा शेयर है उसका 25% मैक्सिमम हम विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर है रेस्ट्रिक्टेड विथड्रॉल है। आपको याद रखना है कि हम पूरा सर्विस में 3 बार विथड्रॉल करेंगे, तो ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया ना, रेस्ट्रिक्शन हो गया ना। और ईच विथड्रॉल में हम मैक्सिमम 25% जो हमारा शेयर है, जो एम्प्लॉय का शेयर है, उससे मैक्सिमम 25% विथड्रॉ किया जाएगा ईच टाइम में, राइट। और जो फास्ट लॉक इन पीरियड रहेगा 3 इयर्स। ओके, 3 इयर्स के बाद, फास्ट जो 3 इयर्स के बाद हम विथड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर बिट 3 है, बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। Which of the following are placed in the negative list and therefore not liable for service tax under section 66D of the Financial Act 1994? इसमें भी देखिए ऐसा कौन सा जो 4 चॉइसेस है, इसमें कौन सा एक्चुअली जो सर्विस है वो नेगेटिव लिस्ट में है और उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, एंड देयरफॉर नॉट लाइबल फॉर सर्विस टैक्स अंडर सेक्शन 66D ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट 1994। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट। तो आंसर इज बिट 3, सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी। इसके ऊपर एक्चुअली टैक्स, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अदर केस में ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वेब स्पीड पोस्ट, ये सभी केस में एक्चुअली टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स लगता है, मगर थर्ड जो ऑप्शन है उसमें टैक्स, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। और ये क्लियरली मेंशन है 66D ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट 1994, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 23। A claim for reimbursement of expenditure incurred on journey under leave travel concession shall be submitted within which of the following under Rule 14? Under Rule 14 of the LTC Rules 1988। तो हम जानते हैं हम एडवांस लेंगे तो जब हमारा रिटर्न जर्नी कंप्लीट होगा तो 1 मंथ के अंदर, हम एडवांस लेंगे तो 1 मंथ के अंदर जो रिटर्न जर्नी कंप्लीट होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी, देन विद इन 1 मंथ वी मस्ट सबमिट द बिल फॉर रिइंबर्समेंट। और एडवांस नहीं लेंगे तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी विद इन 3 मंथ्स। तो अभी आपको आंसर मिल गया, तो आंसर इज बिट 2, विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी। ठीक है, यहाँ पर तो एडवांस के ऊपर नहीं है, LTC एडवांस के ऊपर नहीं है, तो हम एडवांस नहीं लिया है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी, ओके, विद इन 3 मंथ्स द बिल मस्ट बी सबमिटेड फॉर रिइंबर्समेंट। आंसर इज बिट 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 को चलेंगे। फैमिली पेंशन के ऊपर है, इज अवेलेबल अंडर रूल 50। ये जो अभी आ गया CCS पेंशन रूल्स 2021, पहले था CCS पेंशन रूल्स 1972। अभी ये जो दिसंबर 2021 में CCS पेंशन रूल्स 2021 ये आ गया, पेंशन जो ओल्ड पेंशन रूल्स में रिवाइज होकर। तो फैमिली पेंशन बेसिकली रूल 50 में है, पहले वो रूल 54 में था, अभी रूल 50 में है। फैमिली पेंशन इज अवेलेबल अंडर रूल 50 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 बट एक्सक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो फैमिली पेंशन में यहाँ पर क्या इंक्लूड नहीं होगा? डियरनेस रिलीफ, डेथ ग्रेचुइटी, सर्विस ग्रेचुइटी, ट्रैवलिंग अलाउंस। बेसिकली डियरनेस रिलीफ,
ओके, यहाँ पर जो अभी जो फैमिली पेंशन मिलेगा वहाँ पर डियरनेस रिलीफ नहीं मिलेगा, ये क्लियरली मेंशन है। ओके, जो डीआर है वो डीआर नहीं मिलेगा, तो वही दिया है डीआर नहीं मिलेगा, बट एक्सक्लूड स्विच ऑफ द फॉलोइंग, डियरनेस रिलीफ नहीं मिलेगा। राइट, आंसर इज बिट 1। चलो क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑल इंडिया सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स 1954, मैं बता चुका हूँ जो ऑल इंडिया सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स 1954 है, ये बेसिकली हमारे लिए नहीं है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस लाइक। ओके, इन रेस्पेक्ट ऑफ जर्नी बाय लैंड, सी और एयर ऑन ड्यूटी आउटसाइड इंडिया, द मेंबर ऑफ द सर्विस shall be entitled to accommodation in accordance with the rules and orders applicable to which of the following: governed by their deputation rules, govern their special appointment, governing members of the Indian foreign service, governing members of the Indian administrative service। आंसर इज बीट 3, गवर्निंग मेंबर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विस। ओके, जो रूल 3 है ऑल इंडिया सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स 1954, यदि जर्नी बाय लैंड की सी और एयर ऑन ड्यूटी आउटसाइड इंडिया, तो द मेंबर ऑफ द सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ द जर्नी, इसको देखना है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द जर्नी बाय लैंड, सी और एयर ऑन ड्यूटी आउटसाइड इंडिया, द मेंबर ऑफ द सर्विस shall be entitled to accommodation in accordance with the rules and orders applicable to which of the following? Basically, answer is bit 3, governing members of the Indian foreign service. Right? चलो क्वेश्चन नंबर 26, according to the CCS conduct rules, a government servant against whom any legal proceeding is instituted for the recovery of any debt due from him or for adjudging him as an insolvent shall, तो जो CCS कॉन्डक्ट रूल्स में क्लियरली मेंशन है, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो डेप्ट लिया था मगर अभी वो टाइमली पे नहीं कर पाया और उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, तब यहाँ पर क्या एक्शन होगा? तो 4 ऑप्शंस: बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड फॉर द एक्शन, 4th विथ रिपोर्ट द फुल फैक्ट्स ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स टू द गवर्नमेंट, बी सब्जेक्टेड टू नो पेनल्टी अनलेस फाउंड गिल्टी, बी सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस इफ नॉट डिस्क्लोज्ड। एक्चुअली वो इस केस में यदि कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होता है, क्योंकि वो डेप्ट को क्लियर नहीं कर पाया, डेप्ट कंसर्न एम्प्लॉय से रिकवरी नहीं हो पाया, तो लीगल प्रोसीडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इस केस में एक्चुअली वो पूरा रिपोर्ट देगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा रिपोर्ट देगा गवर्नमेंट को, बेसिकली फुल फैक्ट्स ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स। तो आंसर है बीट 2 है, यहाँ पर बीट 2 है आंसर। 4th विथ रिपोर्ट द फुल फैक्ट्स ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स टू द गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट को वो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स लिया गया है उसके ऊपर वो पूरा फैक्ट को रिपोर्ट के आकर में दे देगा। ओके, तो बेसिकली आंसर इज बीट 2। ओके, तो आप देख लीजिए, कॉन्डक्ट रूल देख लीजिए, बेसिकली क्लियरली मेंशन है कि यदि कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चलता है व्हेन द एम्प्लॉय कुड नॉट पे बैक द लोन अमाउंट इन टाइम एंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो इसमें लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होता है, तो इस केस में वो जो भी लीगल प्रोसीडिंग से इंस्टीट्यूट हुआ है तो उसका पूरा रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को देगा, तो आंसर इज बीट 2। चलो क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रांट दैट कैन बी अवेल्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर रूल 15 ऑफ द LTC रूल्स 1988। तो बेसिकली ये जो है जो एडवांस के ऊपर है, द अमाउंट ऑफ सच एडवांस इन ईच केस शैल बी लिमिटेड टू 2/5 ऑफ द एस्टिमेटेड अमाउंट। तो एडवांस के आकर में है तो बेसिकली 90% हमको एडवांस मिलता है, टू एंड जो फ्रो इट मीन्स ऑनगोइंग एंड रिटर्न जर्नी का जो भी खर्च होगा उसका 90% एडवांस मिलेगा। हम बेसिकली हम अप्लाई जब LTC के लिए अप्लाई करते हैं तो बेसिकली हमको 10 डेज़ के अंदर टिकट भी सबमिट करना है, तो हमको 90% एडवांस मिलेगा। बेसिकली जो भी हम टिकट्स के ऊपर खर्च करेंगे उसका 90% एडवांस मिलेगा। हम देखते हैं ऑप्शंस दिया है, द अमाउंट ऑफ सच एडवांस इन ईच केस शैल बी लिमिटेड टू 2/5 ऑफ द एस्टिमेटेड अमाउंट व्हिच द गवर्नमेंट वुड हैव टू रिइंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बोथ वेज। द अमाउंट ऑफ सच एडवांस इन ईच केस शैल बी लिमिटेड टू 9/10, जो 9/10 ऑफ द एस्टिमेटेड अमाउंट व्हिच द गवर्नमेंट वुड हैव टू रिइंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बोथ वेज। ये करेक्ट है, क्योंकि 90% है तो ये बेसिकली है यही 90% मीन्स 9/10 यही हो गया आंसर। और 2 बिट्स दिया है, द अमाउंट ऑफ सच एडवांस इन ईच केस शैल बी लिमिटेड टू 2/3 और एक दिया है 3/5, मगर यहाँ पर जो आंसर होगा वो बेसिकली 9/10 होगा,
बेसिकली मैं अभी बताया जो भी LTC में हमको एडवांस मिलेगा वो 90% मिलेगा। बेसिकली पूरा एक्सपेंडिचर हम दे देंगे, टू एंड फ्रो ऑनगोइंग एंड रिटर्न का दे देंगे, तो उसका 90% हमको एडवांस मिलेगा। और जब हम LTC के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो उसका 10 डेज़ के अंदर हमको टिकट सबमिट करना है, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर है वो B2 है आंसर, राइट। ये भी बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू SR सप्लीमेंट्री रूल 201, पर्सनल सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर मस्ट नॉट बी एंटर्ड इन द सर्विस बुक जनरली, बट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल केसेस विल इट बी शोन इन द सर्विस बुक। बेसिकली जो सप्लीमेंट्री रूल 201 में क्लियरली मेंशन है, कोई पर्सनल सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्चुअली सर्विस बुक में जनरली मेंशन नहीं होता है। पर्सनल सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर जनरली मेंशन नहीं होता है सर्विस बुक में, पर ऐसा कुछ एक स्पेशल केस होता है वहाँ पर मेंशन होता है। बेसिकली द कैरेक्टर के ऊपर वो सर्विस बुक में मेंशन होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जनरली तो पर्सनल जो कैरेक्टर के ऊपर कोई इट मीन्स कोई भी चीज़ सर्विस बुक में मेंशन जनरली नहीं होता है, मगर सम एक्सेप्शनल केसेस है वहाँ पर मेंशन होगा। जब मेजर पेनल्टी लगेगा और कंसर्न एम्प्लॉई का डिमोशन होगा लोअर पोस्ट को, ठीक है, जो जिस पोस्ट में है वो लोअर पोस्ट को जब डिमोशन होगा उस केस में एक्चुअली उसका जो पर्सनल सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर वो मेंशन होगा सर्विस बुक में। अभी देख लेते हैं, मैं अभी बता दिया। 4 ऑप्शंस गिवन। इफ ही इज सस्पेंडेड द फैक्ट नीड्स टू बी एंटर्ड। इफ ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर द फैक्ट नीड्स टू बी एंटर्ड इन द सर्विस बुक। इफ एनी डिसिप्लिनरी एक्शन इज इनिशिएटेड इट नीड्स टू बी शोन। When a government servant is reduced to a lower substantive post, the reason need to be shown. ये है 4th ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट है। When a government servant is reduced to a lower substantive post, the reason needs to be shown. कभी कभी क्या होता है, ये नहीं है कि उसका परफॉर्मेंस एक्चुअली अप टू द मार्क नहीं होता है और उस केस में उसको लोअर पोस्ट को डिमोशन कर दिया जाता है। कभी कभी PGT है वो TGT है वो PRT को डिमोशन कर दिया जाता है, क्योंकि जो प्रेजेंट पोस्ट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ओके, कि उसका एबिलिटी नहीं है, कि उसका जो एफिशिएंसी के ऊपर सवाल उठता है उस केस में होता है। तो जब लोअर सब्सटेंटिव पोस्ट को चला जाता है, ओके, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिड्यूस टू ए लोअर सब्सटेंटिव पोस्ट द रीजन नीड्स टू बी शोन, तो वहाँ पर रीजन भी दिया जाएगा। तो उस केस में एक्चुअली पर्सनल सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर के ऊपर वो सर्विस बुक में मेंशन होगा। तो यहाँ पर जो होगा आंसर B4 होगा। तो मैं मेजर पेनल्टी के ऊपर जो बताया वो भी हो सकता है, क्योंकि लोअर वहाँ पर भी डिमोशन होगा। और इस केस में मैं अभी बताया, ओके, आप सपोज आपका सिलेक्शन हुआ PGT में और जिस सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ उसमें आपका एफिशिएंसी नहीं है, आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आपको TGT को ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को डिमोशन कर दिया जाएगा। तो उस केस में ओके आपका पर्सनल सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर वो मेंशन होगा, ओके, सर्विस बुक में, राइट, विथ रीजन। चलो क्वेश्चन नंबर 29 को चलेंगे। Which of the following is not considered family as per the definition under Rule 4D और LTC concession rules 1988। जो LTC रूल है 1988 इसमें एक्चुअली फैमिली मेंबर्स होते हैं, ओके, जो फैमिली मेंबर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ वो LTC ले सकते हैं, मगर इसमें ऐसा एक फैमिली मेंबर है जो एंटाइटल नहीं है LTC के लिए। 4 ऑप्शंस गिवन। गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड, पेरेंट्स and or step mother residing with and wholly dependent on the government servant, married daughter not divorced, married daughters who have been divorced। तो आंसर 3 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैरिड डॉटर्स नॉट डाइवोर्स्ड। यदि मैरिड डॉटर का डाइवोर्स होता है कि सपोज वो विडो हो जाता है, तब उस केस में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है, तब उसको LTC ले सकता है। मगर यहाँ पर दिया है जो ऑप्शन 3 है, देखिए, मैरिड डॉटर नॉट डाइवोर्स्ड, ओके, जो मैरिड डॉटर है उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है तो वो LTC कंसेशन नहीं ले सकता। तो आंसर इज B3। बहुत ईजी है, वही पूछा है कि कौन सा फैमिली मेंबर नहीं है इसमें जो LTC ले सकता है, ओके, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैमिली, ओके, फॉर LTC कंसेशन रूल्स 1988, ओके, आंसर इज B3। चलो क्वेश्चन नंबर 30 अगेन GFR के ऊपर है। अंडर द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 रूल 160 लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कैन बी अडॉप्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी हम जानते हैं जो 162 में है, रूल 162 आप देख लीजिए, GFR रूल, बेसिकली मोर देन 2.5 लाख, ओके, मोर देन 2.5 लाख एंड अप टू 25 लाख,
अप टू 25 लाख, ये लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है। मोर देन 25 लाख होगा तो वो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी होगा। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी रूल 161 जीएफआर रूल 161 में है। अभी समझ में आ गया? तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है। मोर देन 2.5 लाख एंड अप टू 25 लाख लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होगा। तो अभी आंसर हो गया। When estimated value of the goods to be procured is up to rupees 35 lakhs. No, when estimated value of the goods to be procured is up to rupees 25 lakhs. Is up to rupees 25 lakhs. तो आंसर इज बिट 3, यही बिट 3 होगा। अभी मैं बताया था। तो जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स होगा मोर देन 2.5 लाख होगा एंड अप टू 25 लाख होगा, तब हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को जाएंगे। ठीक है, वो रूल 162 में मेंशन है। क्लियर? चलो आंसर इज बिट 3। क्वेश्चन नंबर 31 को चलेंगे। ये भी बहुत इजी है। द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 शैल अप्लाई टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स। बेसिकली हम जानते हैं कि जो न्यू पेंशन लागू हुआ 1 जनवरी 2004, तो उसके पहले एक्चुअली ओल्ड पेंशन था, तो वही दिया है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 मीन्स अब ये तो रिवाइज हुआ है। वो पहले था सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, अभी तो ये रिवाइज हुआ है ना, ये ओल्ड पेंशन के ऊपर है। तो साल अप्लाई टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स दोज अपॉइंटेड ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ डिसम्बर 2001। नहीं, आप देख लीजिए, आंसर इज बिट 3। दोज अपॉइंटेड ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ डिसम्बर 2003, क्योंकि मैं अभी बताया 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू हुआ। ओके, नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, जो न्यू पेंशन सिस्टम लागू हुआ, तो आंसर इज बिट 3। तो जिनका अपॉइंटमेंट हुआ 31st डे ऑफ डिसम्बर अप टू 31st डे ऑफ डिसम्बर 2003, उनके लिए ओल्ड पेंशन लागू है। तो आंसर इज बिट 3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 को चलेंगे। In terms of 6th CPC's recommendations regarding traveling allowance or daily allowance on tour as accepted by the government, it is clarified that with the revision of TADA rules as circulated by this department's जो office memorandum number 19030/32/2008, okay, -E IV dated 23rd September 2008, which of the following rules has been brought into force? ये related to 6 CPC का टाइम में है, जो 23rd सितंबर 2008 में। आप इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ओनली परमानेंट एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू टीए। जो ऑप्शन यहाँ पर होगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा। डेली अलाउंस इन मॉनेटरी टर्म्स इज नो लॉन्गर एडमिसिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन टूर। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट ओनली द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स विल बी रिइंबर्स्ड एज पर नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ रिइंबर्समेंट। और जो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इज यहाँ पर जो होगा आंसर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। An order of suspension passed under Rule 10, 1 और 2 of the CCS rules shall be valid for। तो हम जानते हैं जो फास्ट 3 months 90 डेज के लिए वैलिड होगा। फिर बिफोर 90 डेज क्या होगा? बिफोर 90 डेज फिर उसको रिव्यू किया जाएगा। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो रिव्यू कमिटी होगा, रिव्यू कमिटी एक्चुअली उसका रिपोर्ट दे देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिव्यू करने के बाद एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंशन होगा कि नहीं वो देखेगा। ओके, मगर एक्चुअली जो सस्पेंशन पीरियड वैलिड होगा फास्ट अप टू 90 डेज। 90 डेज के बिफोर एक रिव्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट देगा। ठीक है, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिव्यू करके वो एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंशन होगा कि नहीं वो देखेगा। और जो सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंशन होता है वो मैक्सिमम 180 डेज होता है। तो यहाँ पर आंसर मिल गया आपको, आंसर इज बिट 2। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन द गवर्नमेंट डिस्पेंस विथ और रिलैक्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एलटीसी रूल इन एक्सेप्शनल केसेस। तो ऐसा कुछ एलटीसी रूल में ऐसा कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो गवर्नमेंट बेसिकली रिलैक्स करता है। तो क्या है? द रूल इज कैपेबल ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस इफ द ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ दिस रूल्स कॉजेस अनड्यू हार्डशिप इन एनी पर्टिकुलर केस। The rule is uncertain, the rule is vague. तो बेसिकली आंसर इज बिट 2। इफ द ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ दिस रूल्स कॉजेस अनड्यू हार्डशिप इन एनी पर्टिकुलर केस, इस केस में एक्चुअली ये एक एक्सेप्शनल केस है जिस केस में गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है। ठीक है, आंसर इज बिट 2। चलो क्वेश्चन नंबर 35,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन अंडर द टीए रूल से जो 3 नहीं है, ये 3 जो है ये करेक्ट नहीं है। तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन अंडर द टीए रूल्स फॉर द ग्रांट ऑफ टीए। इफ द गवर्नमेंट ऑफिसर अंडरटेक्स द जर्नी टू प्रिपेयर हिज डिफेंस एंड इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेयर ए डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम। हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसके ऊपर एक्चुअली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करना चाहता है। तो जब वो उसका जर्नी होगा तो वो जाएगा, बेसिकली उसमें हम ये कर सकते हैं कि जब उसका जर्नी होता है वहाँ पर वो कहाँ पर स्टे नहीं करेगा। when it means he is on the journey, basically he will not stay anywhere। यदि भी कहाँ पर स्टे करता है तो वहाँ पर उसको एक्चुअली डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। ओके, बेसिकली जर्नी पीरियड में उसका स्टे नहीं होगा, उसके बाद एक्चुअली 3 डेज हाल्ट उसको दिया जा सकता है वो जो डॉक्यूमेंट को परस्यू करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है कि वो जब जर्नी करता है क्या उस केस में उसी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है, परस्यू करना चाहता है। तो इसमें दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी टीए ड्यूरिंग सच इंक्वायरी, द एंटाइटलमेंट्स डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ सर्विस, दे आर गिवन टीए फॉर ए जर्नी ऑन टूर विदाउट एनी अलाउंस फॉर हाल्ट्स, दे कैन ओनली गेट सच टीए इफ फाउंड इनोसेंट ड्यूरिंग इंक्वायरी। तो आंसर इज बिट 3 होगा आंसर, क्योंकि वो जर्नी के ऊपर है। वो जब जर्नी करता है वहाँ पर वो बेसिकली ही कैनॉट स्टे एनीवेयर एल्स। स्टे करता है तो उसको जिस दिन वो जर्नी टाइम में वो स्टे करता है तो उसको एक्चुअली डेली जो बेसिकली डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। ओके, जर्नी टू एंड फ्रो जो होता है ऑनगोइंग एंड रिटर्न जर्नी में कहाँ पर भी वो स्टे नहीं करेगा, स्टे करेगा तो उसको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। मगर उसके बाद एक्चुअली 3 डेज उसको हॉल्ट पीरियड मिलता है जहाँ पर वो बेसिकली रहता है और वो डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करता है, वहाँ पर 3 डेज के लिए उसको डेली अलाउंस मिलता है। पर जर्नी टाइम में वो स्टे करता है तो उसको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। तो आंसर इज बिट 3। चलो क्वेश्चन नंबर 36 को चलेंगे। अकॉर्डिंग टू FR 14 फंडामेंटल रूल 14, द प्रेसिडेंट शैल सस्पेंड द लियन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ए परमानेंट पोस्ट व्हिच ही होल्ड्स substantially if he is appointed in a substantive capacity to a or on regular post, tenure post, ad hoc post or permanent post। Answer is 2, it is tenure post। Okay, the president वो shall suspend the lien of a government servant। सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो बेसिकली टेन्योर पोस्ट में है और वो लीन पीरियड में गया है, यहाँ पर दिया है क्लियर, देखिए द प्रेसिडेंट shall suspend the lien of a government servant on a permanent post which he holds substantially if he is appointed in a substantive capacity to an a tenure post में। सपोज कोई टेन्योर पोस्ट में वो गया है, लियन लेकर गया है टेन्योर पोस्ट में, और उस केस में एक्चुअली प्रेसिडेंट वो लियन पीरियड को सस्पेंड कर सकते हैं। तो आंसर इज बिट 2, बेसिकली टेन्योर पोस्ट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 37, willful absence from duty after the joining time has expired is treated as dash under fundamental rule 108। तो ज्वाइनिंग टाइम पीरियड मिलता है जब ट्रांसफर होता है, जो ज्वाइनिंग टाइम पीरियड मिलता है, सपोज ज्वाइनिंग टाइम खत्म होने के बाद भी कंसर्न एम्प्लॉय वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसमें एक्चुअली उसको मिसबिहेवियर माना जाता है। बेसिकली आंसर इज बिट 3, मिसबिहेवियर माना जाता है। जो ज्वाइनिंग टाइम मिलता है 10 डेज की, 12 डेज की, मैक्सिमम 15 डेज जो ज्वाइनिंग टाइम, उसके अंदर वो ज्वाइन नहीं करता है, ज्वाइनिंग टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है, और ज्वाइनिंग टाइम ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है और वो तभी भी वो एब्सेंस है, तो इस केस में उसको मिसबिहेवियर माना जाएगा। ये फंडामेंटल रूल 108 में क्लियरली मेंशन है। तो आंसर इज बिट 3। चलो क्वेश्चन नंबर 38, इनकम डीम्ड टू accrue or arise in India as defined in section 9 of the Income Tax Act 1961 includes all of the following except। तो बेसिकली यहाँ पर जो दिया है सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, आप देख लीजिए, इसमें जो इनकम बेसिकली अराइज इन इंडिया, ओके, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें ऐसा एक ऑप्शन है जो बेसिकली इंक्लूड नहीं होगा इसमें, वो दिया है एक्सेप्ट थ्रू द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया और आउटसाइड, यहाँ पर हो गया।
ये एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिकली इंडिया में बोला है, इंडिया के अंदर बोला है जो इनकम अराइज होगा वो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 में वो इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, मगर विद इन इंडिया पूछा है तो इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सभी इंक्लूड होगा एक्सेप्ट यही होगा फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया और आउटसाइड दे दिया, तो ये एक्चुअली इसमें इंक्लूड नहीं होगा, राइट। और जो इनकम है ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आप देख लीजिए, ये सब जो इनकम है विद इन इंडिया है, ऑप्शन इज 3। चलो क्वेश्चन नंबर 39, सेक्शन 66B of the Finance Act of 1994 states there shall be levied a tax hereinafter referred to as the service tax at the rate of dash on the value of all services other than those services specified in the negative list provided or agreed to be provided in the taxable territory by one person to another and collected in such manner as may be prescribed। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव लिस्ट में है, ऐसा कुछ सर्विसेज है जो नेगेटिव लिस्ट में है और इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो बेसिकली जो सर्विस टैक्स जो सेक्शन 66B में दिया है जो फाइनेंस एक्ट ऑफ 1994, ये जो सर्विस टैक्स जो बेसिकली इम्पोज होगा, भी सर्विस टैक्स जो लेवीज होगा बेसिकली वो 14% है। ओके, बेसिकली कितना परसेंट है? वो 14% है। तो अभी आंसर मिल गया, आंसर इज 3, आपको याद रखना है। जो नेगेटिव लिस्ट में है बेसिकली उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, उसके अलावा ओके जो सेक्शन 66B ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट ऑफ 1994 में क्लियरली मेंशन है जो टैक्स लेवीज होगा बेसिकली सर्विस टैक्स जो इम्पोज होगा वो बेसिकली कितना होगा ना, 14% होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 को चलेंगे। व्हेन इट इज डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिप्लेस existing old items with a new and better version, the department may trade the existing old item while purchasing the new one. This is called dash under the GFR 2017। आप देख लीजिए जो GFR रूल 176 देख लीजिए, बाय बैक ऑफर। इट मीन्स ओल्ड आइटम्स को बेसिकली बेच देना है और उसके जगह न्यू आइटम को खरीदना है। ओके, सेल द ओल्ड आइटम्स एंड इन प्लेस ऑफ इट परचेज द न्यू आइटम्स, ये बाय बैक ऑफर ये बेसिकली GFR 176 में है, और आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पर आंसर मिल गया, आंसर इज बिट 3, बाय बैक ऑफर। क्वेश्चन नंबर 41 को चलेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल 8 ऑफ द CCS कंडक्ट रूल्स 1964, नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall own wholly or in part or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or other periodical publication or electronic media। आप देख लीजिए जो कंडक्ट रूल 8 देख लीजिए, कंडक्ट रूल 8 आप देख लीजिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कोई न्यूज़पेपर सपोज उसको एडिटिंग करना चाहता है कि कोई न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करना चाहता है, उसमें गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। हाँ, वो ऐसा है ऑटोमेटिकली उसका जो पोस्ट है वो कर सकता है, वो अलग बात है। मगर अभी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सपोज उसका गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया है कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए कि उसको एडिटिंग करने के लिए। ओके, तो ये सब परमिशन गवर्नमेंट का लेना पड़ेगा। इसका जॉब है, गवर्नमेंट ऑफिसर का जॉब है, वो कर सकता है, एज यूजुअल जॉब है तो वो कर सकता है। मगर नॉर्मली गवर्नमेंट सर्वेंट का ये राइट नहीं है कि वो बिना गवर्नमेंट परमिशन से वो कोई न्यूज़पेपर को एडिटिंग कर सकता है और पब्लिश कर सकता है। ठीक है, ये पूरा रूल 8 देख लीजिए आप, कंडक्ट रूल 8 में क्लियरली मेंशन है। तो अभी आपको आंसर मिल गया, तो ये कर सकता है, तो विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ही कैन डू सो। आंसर इज बिट 1, ये करेगा। सपोज वो कोई न्यूज़पेपर को एडिटिंग कर सकता है और उसको मैनेज कर सकता है, उसका पीरियोडिकल पब्लिकेशन कर सकता है, और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। मगर इसमें जो है विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ही कैन डू सो। ओके, आंसर इज बिट 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर रूल 2H सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944, treatment means the use of all medical and surgical facilities available at a government hospital in which the government servant is treated and includes all of the following except। सभी इंक्लूड होगा जब ट्रीटमेंट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इंडोर ट्रीटमेंट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। CS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 में जो ट्रीटमेंट होगा बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट होगा तो इसके इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, मगर एक को छोड़ के यहाँ पर क्या हम नहीं लेंगे, डाइट कंसल्टेशन को नहीं लेंगे, ये सब इंक्लूड होगा। द सप्लाई ऑफ सच मेडिसिन, वैक्सीन्स, सेरा एंड अदर थेरापेटिक सब्सटेंसेस, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और अदर मेथड्स, ये इंक्लूड होगा। थर्ड जो है इंक्लूड नहीं होगा,
ठीक है, थर्ड जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, डाइट कंसल्टेशन इंक्लूड नहीं होगा। सच अकोमोडेशन आज इज ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड इन द हॉस्पिटल एंड इज सुइटेड टू हिज स्टाटस। स्टाटस के हिसाब से हमारा बेसिक पे हिसाब से हमको अकोमोडेशन मिलता है। तो जो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 है वो CS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में इंक्लूड है, मगर डाइट कंसल्टेशन वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जो फास्ट है उसमें जो भी मेडिसिन वैक्सीन ये सब है वो सब रिम्बर्स होगा। जो पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो भी टेस्ट होगा उसमें वो भी रिम्बर्स होगा। और बेसिकली हमारा बेसिक पे हिसाब से, हमारा स्टाटस के हिसाब से हमको अकोमोडेशन मिलता है, सब ठीक है, मगर डाइट कंसल्टेशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो वही पूछा है, सभी इंक्लूड होगा एक्सेप्ट, तो वही है डाइट कंसल्टेशन। आंसर इज बिट 3। चलो क्वेश्चन नंबर 43। According to the updated All India Services Travelling Allowance Rules 1954, no additional funds will be provided on account of revision in TADA entitlements. It may therefore be ensured that permission to official travel is given dash and restricted only to absolutely essential official requirements. ये जो ऑप्शन है judiciously. Okay, answer is bit 3, judiciously. It may therefore be ensured that permission to official travel is given judiciously and restricted only to absolutely essential official requirements. ठीक है, ये बेसिकली अगेन आ गया ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1954। ये एक्चुअली हमारे लिए लागू नहीं है, मगर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। तो इसमें जो दिया है, जो अपडेटेड ऑल इंडिया सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स है 1954, नो एडिशनल फंड्स, कोई एडिशनल फंड नहीं दिया जाएगा। No additional funds will be provided on account of revision in TADA entitlements. It may therefore be ensured that permission to official travel is given judiciously and restricted only to absolutely essential official requirements. Answer is bit 3. चलो क्वेश्चन नंबर 44। According to Rule 1, 2 of the Central Services Medical Attendance Rules 1944 is not applicable to who among the following? किसके लिए applicable नहीं होगा? दो सर्विसेज द प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट, इसके लिए एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एप्लीकेबल होगा। सेंट्रल सर्वेंट्स एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन रेलवे सर्विस एप्लीकेबल नहीं होगा। CS जो सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 रेलवे सर्विस जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन रेलवे सर्विस, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। वही क्वेश्चन पूछा है, आप देख लीजिए CS MA रूल्स 1944 रूल 1, 2, इसमें क्लियरली मेंशन है क्या एप्लीकेबल होगा, क्या एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आंसर मिल गया, आंसर इज बिट 4। चलो क्वेश्चन नंबर 45 को चलेंगे। ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर फ्रॉडुलेंट क्लेम ऑफ LTC and the proceeding has resulted into a penalty. What penalty would be liable for under 16 of the LTC rules 1988? तो यहाँ पर जो रूल है एक्चुअली ऐसा कुछ जो LTC में कुछ फ्रॉड क्लेम होता है, जब आप क्लेम करते हो उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को आप फॉलो किया, तो उसमें एक्चुअली रूल 16 आप देख लीजिए, LTC रूल्स 1988 में क्लियरली मेंशन है, यदि आप कुछ फ्रॉड किया क्लेम में, LTC क्लेम में, तो अब आपका जो बेसिकली प्रेजेंट जो रीइंबर्समेंट को विथहेल्ड कर दिया जाएगा और नेक्स्ट 2 सेट्स ऑफ LTC को भी विथहेल्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 2 सेट मीन्स एक होम टाउन LTC, एक ऑल इंडिया LTC को विथहेल्ड कर दिया जाएगा। और जो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट जो रीइंबर्समेंट आपको होल्ड कर दिया जाएगा वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए। द गवर्नमेंट जो ऑप्शन बेसिकली ऑप्शन 2 आंसर है, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी अलाउड द नेक्स्ट 2 सेट्स ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। अभी मैं बताया जो नेक्स्ट 2 सेट्स ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन, बेसिकली एक होम टाउन LTC एक 4 इयर्स होता है, 4 इयर्स को स्प्लिट कर देते हैं हम 2 ब्लॉक में, ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 इयर्स, नहीं कि एक होम टाउन और एक ऑल इंडिया। तो वही है, नेक्स्ट 2 सेट्स ऑफ द लीव ट्रैवल कंसेशन को रोक दिया जाएगा इन एडिशन टू द सेट्स ऑलरेडी विथहेल्ड। तो यहां पर जो आंसर होगा वो भी 2 होगा। बेसिकली प्रेजेंट जो इन एडिशन टू द सेट्स ऑलरेडी विथहेल्ड, जो सेट्स को ऑलरेडी विथहेल्ड कर दिया गया है, और उसके अलावा जो नेक्स्ट 2 सेट्स को भी विथहेल्ड कर दिया जाएगा यदि कोई LTC क्लेम में कुछ फ्रॉड डिटेक्ट होता है। ठीक है, फिर आप सपोज इससे एक्जोनरेट हो गए, एग्जेम्प्ट हो गए, तब उसके बाद आपको फ्यूचर में जो भी आपका जो सेट्स है उसको विथहेल्ड कर दिया गया है वो आपको मिल जाएगा।
ऑप्शन इज 2 बहुत इंपॉर्टेंट वन। द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी अलाउड द नेक्स्ट 2 सेट्स ऑफ द लीव ट्रैवल कंसेशन। नेक्स्ट 2 सेट्स में बताया, एक होम टाउन एलटीसी और एक ऑल इंडिया एलटीसी को विथहेल्ड कर दिया जाएगा इन एडिशन टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू द सेट्स ऑलरेडी विथहेल्ड। और जो सेट्स ऑलरेडी विथहेल्ड है वो तो विथहेल्ड होगा और नेक्स्ट 2 सेट्स को भी विथहेल्ड किया जाएगा। तो ऑप्शन आंसर इज बी 2। चलो क्वेश्चन नंबर 46 को चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स एन अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर नेसेसिटेड बाय स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन विच ड्यूटी इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। देखिए, टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर, ओके, स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन विच ड्यूटी इज परफॉर्म्ड। तो आपको ध्यान देना है, पर्सनल एक्सपेंडिचर और स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन विच ड्यूटी इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटरी अलाउंस होगा। यहाँ पर आंसर बहुत ईजी है, इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। ओके, आंसर इज बिट 4। बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट करेगा और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जब वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम कॉम्पेंसेटरी अलाउंस बोलते हैं। आंसर इज बिट 4, बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 47 को चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल रूल 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा क्वेश्चन को मैं एडजस्ट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल रूल 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एज ए जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। आप फंडामेंट FR10 में देख लीजिए, FR10 में क्लियरली मेंशन है, FR10 में क्लियरली मेंशन है कि आपका जब अपॉइंटमेंट होता है, जो एसेंशियल जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस होता है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका अपॉइंटमेंट होता है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है। यहां पर वही पूछा है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एज ए जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो आंसर ये आपको मिल गया, अदर ऑप्शन को हम नहीं जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको देना पड़ेगा। ऑप्शन इज 1। ओके, बेसिकली जो जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस है उसमें क्लियरली मेंशन है कि जब अपॉइंटमेंट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट लेना ही लेना है, ओके, कंसर्न एम्प्लॉय से। ओके, तो इनिशियल अपॉइंटमेंट में आपको देना पड़ेगा हेल्थ सर्टिफिकेट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 48 को चलेंगे। अगेन एक ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स 1954 रूल 4 द ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऑफ ए मेंबर ऑफ द सर्विस who is serving under one government shall be governed by which of the following rules when he is transferred or sent on deputation। ये बहुत ये कॉमन है। जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट जब उसका पेरेंट डिपार्टमेंट से वो कोई फॉरेन डिपार्टमेंट को चला जाता है डेपुटेशन में, तो उसको कैसे टीए मिलेगा। आपको यहाँ पर याद रखना है, जो उसको टीए मिलेगा उसका पेरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से मिलेगा। ओके, फॉरेन सर्विस में वो गया है, ओके, मगर पेरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से टीए मिलेगा। तो अभी आंसर आपको मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है आंसर। ओके, तो टीए मिलेगा वो ऑप्शन 4 है। बी गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट अंडर हुम ही इज ट्रांसफर्ड और डेप्यूटेड टू सर्व अनलेस बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ही कंटिन्यूज टू बी गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट अंडर हुम ही वाज सर्विंग बिफोर सच ट्रांसफर और डेपुटेशन। तो ये पेरेंट डिपार्टमेंट है। तो मैं अभी बताया जो टीए मिलेगा वो अभी बेसिकली फॉरेन सर्विस में है, मगर जो टीए मिलेगा उसको उसका पेरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बिट 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 को चलेंगे। अगेन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस अंडर रूल 3 ऑफ द टीए रूल्स 1954, ये भी और एक ऑल इंडिया सर्विस टीए रूल्स 1954। इन केस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स हु डाई व्हाइल इन सर्विस, यदि कोई ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर का डेथ हो जाता है, सर्टन कंसेशंस विल बी एडमिसिबल टू मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज फॉर पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस रूल सब्जेक्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। हमारे लिए हमारा जो रूल है बेसिकली जो CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज टीए रूल्स में, जब कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ होता है उसका फैमिली मेंबर्स को टीए मिलेगा, ठीक है। मगर वो जो जर्नी वो कंप्लीट करेगा विद इन 1 ईयर। मगर यहाँ पर जो ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स केस में जब उसका डेथ होता है उसका फैमिली मेंबर्स को भी बेसिकली टीए मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, मगर विद इन 6 मंथ्स उनको जर्नी कंप्लीट करना है, विद इन 6 मंथ्स। तो ऑल इंडिया सर्विस में विद इन 6 मंथ्स, मगर हमारा केस में विद इन 1 ईयर, आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा केस में तो बहुत क्लियर है, क्योंकि इट मीन्स जो एडवांस मिलेगा वो 75% मिलेगा,
विद इन 1 ईयर इट मीन्स डिफरेंट ग्रुप में फैमिली मेम्बर्स जा सकते हैं, मगर विद इन 1 ईयर सबको जर्नी कंप्लीट करना पड़ेगा। और 75% एक एडवांस जो एक ही मेंबर ले सकता है एडवांस, डिफरेंट ग्रुप में वो जा सकते हैं मगर एक मेंबर एडवांस ले सकता है। और एडवांस जो मिलेगा जो बेसिकली ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर होगा उसका 75% मिलेगा। मगर यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस पूछा है, मैं क्या बताया, जब ऑल इंडिया ऑफिसर का डेथ होता है तो उसका फैमिली मेंबर 6 मंथ्स के अंदर उनका इट मीन्स जर्नी खत्म करेगा, उनको टीए मिलेगा। तो वही आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आंसर हमको मिल गया, इट मीन्स बेसिकली प्रोवाइडेड द जर्नी इज कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑफिसर। मगर हमारा सीसीएस रूल में क्या है ना, प्रोवाइडेड जर्नी इज कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, मगर ये ऑल इंडिया सर्विस के लिए है। ऑल इंडिया सर्विसेज 1954 रूल है जो हमारे लिए लागू नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। आज रिक्वायर्ड अंडर द सीसीएस रूल्स एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शाल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज इन गुड फेथ कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू ए पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत कॉमन है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अब देख लीजिए उसका जो रूल 22 है, सेक्शन 22 है एंड द रूल्स। तो आंसर इज बिट 3, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, 22 ऑफ 2005 एंड द रूल्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। द न्यू पेंशन स्कीम हैज बीन नेम्ड एज नेशनल पेंशन स्कीम अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा एक्ट है? जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। ओके, जो आंसर है 1 है। ओके, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 यही है, ठीक है। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको नेशनल पेंशन स्कीम, ओके, ऑलरेडी उसका न्यू नेम दे दिया गया। अभी न्यू पेंशन स्कीम हम न्यू नहीं बोलेंगे, नेशनल पेंशन स्कीम बोलेंगे। और कौन सा एक्ट ना, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। आंसर इज बिट 1। चलो क्वेश्चन नंबर 52। अकॉर्डिंग टू रूल 145 ऑफ द GFR 2017 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द अथॉरिटी टू ऑर्डर परचेज ऑफ गुड्स। तो बेसिकली आप देख लीजिए रूल 145 ऑफ GFR 2017, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अथॉरिटी कौन है। ओके, हु हैज फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर एंड हु इज द अथॉरिटी बेसिकली टू प्रोक्योर द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर 2 हो गया ना, अथॉरिटी व्हिच इज कॉम्पिटेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर में सैंक्शन द परचेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड फॉर यूज इन पब्लिक सर्विस। तो आंसर इज बिट 2। ओके, ये क्लियरली मेंशन है, आप देख लीजिए GFR रूल 145 में क्लियरली मेंशन है, an authority who is competent to incur expenditure may sanction the purchase of goods required for use in public service। पूरा क्लियरली ये सेंटेंस मेंशन है रूल 145 में, आप देख लीजिए। आंसर इज बिट 2। 53 देखेंगे। as defined under the Income Tax Act 1961 any income derived from saplings or seedlings grown in a nursery shall be deemed to be, बहुत ईजी है, एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा। ओके, जो इनकम जनरेट होता है, आप कुछ सप्लिंग्स और सीडलिंग्स आप ग्रो कर रहे हो, बेसिकली नर्सरी से आपको जो इनकम मिलता है वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा। ओके, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। तो आंसर इज बिट 4। चलो 54 देखेंगे, ये भी बहुत इजी है। कैपिटल असेट्स एज डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डज नॉट इंक्लूड पर्सनल इफेक्ट्स। कैपिटल असेट्स में पर्सनल इफेक्ट्स इंक्लूड नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पर्सनल इफेक्ट्स एक्सेप्ट। हम जानते हैं कि जो कैपिटल असेट्स को डिक्लेयर किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें कोई पर्सनल इफेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन है आप देख लीजिए, ये सभी पर्सनल इफेक्ट्स में इंक्लूड होगा मगर एक को छोड़ के। बेसिकली आंसर मिल गया शेयर्स, अदर जो ड्राइंग्स, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, वो सब पर्सनल इफेक्ट्स है और वो कैपिटल असेट्स में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेसिकली 4 होगा। क्या होगा? शेयर्स, ठीक है। बेसिकली शेयर्स जो होगा वो कैपिटल असेट्स में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये एक पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगा। पर्सनल इफेक्ट में ड्राइंग्स, ज्वेलरी, पेंटिंग्स आता है और बेसिकली पर्सनल इफेक्ट्स को हम कैपिटल असेट्स में नहीं लेंगे, राइट। तो आंसर इज बिट 4। चलो क्वेश्चन नंबर 55। When withholding of increments of pay of a government servant is done for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rules or orders governing the service to which he belongs or the post which he holds, this will result into which of the following according to rule 11 of the CCA rules। ये बहुत कॉमन चीज़ है। आप एग्जाम, कोई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में फेलियर हुआ
तो इसमें एक्चुअली कोई जो हमारा सीसीए रूल्स है, बेसिकली सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 में जो पेनल्टी है रूल 11 आप देख लीजिए, ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में वो फेल हुआ तो उसमें एक्चुअली कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, नो पेनल्टी, इसमें पेनल्टी नहीं लगेगा। आप जानते हो क्लियरली, आप देख लीजिए माइनर पेनल्टी एंड मेजर पेनल्टी, तो उसमें नहीं लगेगा, ये क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो नो पेनल्टी आंसर है। ओके, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में फेल्यूर हुआ तो वहाँ पर ऐसा कोई माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी और डिसिप्लिनरी एक्शन एक्सप्लेनेशन ये सब नहीं होगा, ये नो पेनल्टी आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर इज बिट 4। 56 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिसीव्ड ओरल डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर व्हाट इज हिज और ड्यूटी एज स्पेसिफाइड अंडर द सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। ये क्लियरली मेंशन है, जब आपको आपका हायर ऑफिसर कुछ ओरल डायरेक्शन देता है तब इमीडिएटली आपको बोलना है कि रिटन इन्फॉर्मेशन उनको देना पड़ेगा हायर ऑफिसर को, क्योंकि ओरल डायरेक्शन ऑथेंटिक नहीं है। जब आपका हायर ऑफिसर ओरल डायरेक्शन देता है, ओरल डायरेक्शन तो देता है मगर उसको रिटन में उसको देना पड़ेगा, वही है। तो ही शैल सीक कंफर्मेशन ऑफ द सेम इन राइटिंग as early as possible, whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing। तो यहाँ पर आंसर बिट 1 है। तो जब भी ओरल डायरेक्शन आपका हायर ऑफिसर देता है, दे सकता है, मगर उसको as soon as possible उसको रिटन इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये क्लियरली मेंशन है सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 में। तो आंसर इज बिट 1। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल 4 नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज हिज, आप देख लीजिए बेसिकली कंडक्ट रूल देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू रूल 4 नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज हिज डैश और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी और फार्म। ये पोजीशन है। अकॉर्डिंग टू रूल 4 नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज हिज पोजीशन, आंसर इज बिट 4, shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any company or firm। तो आंसर इज बिट 4, बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, सेक्शन 80 GGB, 80 GGB जो है ना, इसमें जब आप कंट्रीब्यूट करते हो, सेक्शन 80 GGB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1964 अलाउज डिडक्शन टू एन असेस्ड इंडियन कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको याद रखना है जो 80 GGB जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, बेसिकली डोनेशन के ऊपर है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो कि कोई इंडिविजुअल। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है वहां पर उसको डिडक्शन मिलता है, क्योंकि 80G जो है वो डोनेशंस के ऊपर है, और जो 80 GGB में क्लियरली मेंशन है कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी इंडियन कंपनी यदि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है और वहां पर उसको डिडक्शंस मिलता है। तो अभी आंसर हो गया, आंसर इज बिट 3, कंट्रीब्यूशंस मेड टू पॉलिटिकल पार्टी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू FR फंडामेंटल रूल 50 द डेपुटेशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट आउटसाइड इंडिया रिक्वायर सैंक्शन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज। ओके, द डेपुटेशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट आउटसाइड इंडिया रिक्वायर सैंक्शन, यहाँ पर जो सैंक्शन होगा बेसिकली सैंक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट, आंसर इज बिट 3। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सैंक्शन करेगा। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का मैंने डेपुटेशन में वो गवर्नमेंट सर्वेंट अब्रोड को जाएगा, ओके, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो एक्चुअली डेपुटेशन में आउटसाइड ऑफ द कंट्री जाएगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। तो आंसर इज बिट 3, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 60, ये जो भविष्य है अभी बेसिकली पेंशन पोर्टल एक है, अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन केस में जैसे आपका बेसिकली पेंशन पेपर्स को आप ट्रैक कर पाएंगे, भविष्य जो है ये पूरा पेंशन पेपर वो जैसे अकाउंट्स ऑफिसर के पास पहुंचा कि नहीं, जो प्रोसीजर है आपको भविष्य पोर्टल में मिलेगा। ओके, तो भविष्य इज डिफाइंड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2000, ये ओल्ड पेंशन के ऊपर है। तो भाई आप देखिए ऑप्शन 3 देख लीजिए, सिस्टम फॉर सैंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड ट्रैकिंग ऑफ सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ पेंशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द अथॉरिटीज कंसर्न्ड विथ सैंक्शन ऑफ पेंशन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, यही आंसर 3। तो आप ट्रैक कर पाएंगे, भविष्य जो पोर्टल है एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें आप क्लियरली ट्रैक कर पाएंगे कि कब आपका पेंशन सैंक्शन होगा, सैंक्शन हुआ कि नहीं, ओके, तो कब पेमेंट होगा, ये पूरा डिटेल्स आप भविष्य पोर्टल से आपको पता चलेगा, ठीक है, एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो आंसर इज बिट 3।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओल्ड पेंशन के ऊपर। ये अभी जो CCS पेंशन रूल्स 2021 में क्लियरली मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 61 को चलेंगे। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट is entitled free of charge to medical attendance by the authorized medical attendant, in which of the following manners he can receive the facility under the Central Services Medical Attendance Rules 1944। आपको याद रखना है, जब भी आपका इंडोर ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, तब जो भी बिल्स है उसको ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट सिग्नेचर करेगा, उसको ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट सिग्नेचर करेगा सभी बिल में, तब आप को रिइंबर्समेंट मिलेगा। तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन है। एनी अमाउंट पेड बाय, तो आंसर इज बिट 1 है। एनी अमाउंट पेड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ सच मेडिकल अटेंडेंस शाल ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट इन राइटिंग बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट इन दिस बिहाफ बी रिइंबर्स्ड टू हिम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944। क्लियरली मेंशन है, जब भी इंडोर ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, जो भी बिल्स होगा उसमें ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, और सिग्नेचर होगा तो वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हो गया, और वो डॉक्यूमेंट्स आप जब ऑफिस में सबमिट करोगे आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आंसर बिट 1 है, राइट। अदर ऑप्शंस को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। वेयर ऑफिसर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS मीन्स ऑल इंडिया सर्विसेज, हु वी आर बॉर्न ऑन स्टेट कैडर्स but we are serving the central government at the time of retirement and who retired from service without reverting to the parent state cadre are entitled to each of the following। एक्चुअली जो ऑल इंडिया सर्विस केस में एक ऑफिसर वो स्टेट कैडर का है, डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा था और रिटायरमेंट हो गया, और वो एक्चुअली उसका जो पेरेंट स्टेट कैडर था उसमें रिवर्ट नहीं हो पाया, ठीक है। वो एक्चुअली स्टेट कैडर का था, वो अभी डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को गया था और उसमें उसका रिटायरमेंट हो गया, और जब रिटायरमेंट हुआ वो एक्चुअली उसका पेरेंट कैडर जो है, स्टेट कैडर है, उसमें रिटर्न नहीं कर पाया। तो इस केस में क्या होगा, तो उस केस में टीए के ऊपर है, ये जो भी 4 ऑप्शन है टीए के ऊपर है। ओके, उसको कैसे टीए कैसे एडमिसिबल, जो ट्रैवलिंग अलाउंस कैसे एडमिसिबल होगा। रिटायरमेंट टाइम में हम जानते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, चाहे कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट है कि पर्सनल इफेक्ट्स के लिए और हमारा जर्नी के लिए सब मिलेगा। तो इसमें एक्चुअली ऑप्शन 2 आंसर है, टीए एडमिसिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओके ऑन रिटायरमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो टीए जो मिलेगा ये ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर को इसी के हिसाब से मिलेगा। जैसे टीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, जब उसका रिटायरमेंट होता है, जैसे उसको टीए मिलता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बेस से ही यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर को बेस से ही टीए मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट और पर्सनल इफेक्ट्स के लिए, और जो कन्वेयंस है बेसिकली वो उसका जो कार फार है उसको ले सकता है, ठीक है, और जर्नी। तो 4 टाइप्स बेनिफिट मिलता है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, कन्वेयंस और पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट मीन जो सामान लेकर जाएगा, ठीक है, और जो जर्नी है। तो यहाँ पर जो उसको वो डेप्यूटी स्टेट कैडर से वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गया था, उसका रिटायरमेंट हो गया, वो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट जो स्टेट कैडर था वो रिटर्न नहीं कर पाया, तो उसमें उसको जो टीए मिलेगा, रिटायरमेंट टीए, वो जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड होता है और उसको जैसे टीए मिलता है वैसे के हिसाब से उसको टीए मिलेगा। तो आंसर इस बिट 2 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। व्हेन मे गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव ट्रीटमेंट एट हिज रेसिडेंस अंडर रूल 7(1)। तो अंडर आप देख लीजिए, आप CSMA रूल्स देख लीजिए, सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 देख लीजिए। रूल 7 देखिए, रूल 7 में क्लियरली मेंशन है कि कब जो गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रीटमेंट उसका घर में होगा, रेसिडेंस में होगा ना, वो जब उसका कंडीशन सिवियर क्रिटिकल कंडीशन होगा, और एक है ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो 2 ऑप्शंस आपको आप 2 देख लीजिए, ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, और सेकेंड केस में वो क्रिटिकल कंडीशन में है जो हॉस्पिटल को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट रेसिडेंस में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 4 देख लीजिए, ओइंग टू द अब्सेंस और रिमोटनेस ऑफ ए सुइटेबल हॉस्पिटल, जो रिमोट एरिया में कोई सुइटेबल हॉस्पिटल नहीं है, और टू द सिवियरिटी ऑफ इलनेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट बी गिवन ट्रीटमेंट आज प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 6। आंसर इज बिट 4। ओके, यहाँ पर जो रेसिडेंस में ट्रीटमेंट होगा, आपको 2 चीज़ याद रखना है कि रिमोट जो एरिया है वहाँ पर कोई सुइटेबल हॉस्पिटल नहीं है,
और एक जो इलनेस है वो सीवियर है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है, तब उसका जो ट्रीटमेंट होगा बेसिकली रेसिडेंस में होगा। तो आंसर इज बिट 4। क्वेश्चन नंबर 64, हु शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्रोबेशनर undergoing training at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration to impose on such probationer any of the penalties specified in Rule 11 of the CCA rules। ये जो दिया है कोई प्रोबेशनर वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी में नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वो ट्रेनिंग ले रहा है, मगर वो प्रोबेशन के ऊपर कोई सपोज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला और उसके ऊपर पेनल्टी लगाया गया रूल 11 के हिसाब से, तो ये जो पेनल्टी लगेगा उसको कौन लगाएगा? एक्चुअली बेसिकली हु हैज़ पावर टू इम्पोज पेनल्टी ऑन ए प्रोबेशनर ओके हु इज़ अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी। सपोज ऐसा उसके ऊपर सपोज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला और चलने के बाद अल्टीमेटली फाइनल हुआ, प्रोसीडिंग के बाद बेसिकली डिसीजन हुआ कि पेनल्टी लगेगा अंडर रूल 11 बेसिकली जो माइनर और मेजर, तो उसमें हु इज़ द अथॉरिटी? अथॉरिटी होगा द डायरेक्टर ऑफ द सेड एकेडमी। आंसर इज बिट 2। वही जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसका जो डायरेक्टर है वही वहाँ पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा, उसका पावर है, वो रूल 11 के अंडर में जो पेनल्टी है वो लगा सकता है, राइट। तो आंसर इज बिट 2। चलो क्वेश्चन नंबर 65 को चलेंगे। यहाँ पर एक देखिए, रेट्स ऑफ डेली अलाउंस ऑन टूर may be regulated either in accordance with the provisions of this department's office memorandum dated 23rd September 2008 or for the old rates prevalent prior to the issue of the said office memorandum, whichever is claimed by the employee. The option to claim will be available as a dash for a particular tour and not by taking part of either orders. In other words, officers may choose to be governed either by orders dated 23rd September 2008 or dated 17th April 1998 इन रिगार्ड टू डेली अलाउंस ऑन टूर। ये जो होगा आंसर होगा बिट 3 कंप्लीट पैकेज। ओके, आंसर बिट 3 होगा कंप्लीट पैकेज। 66 को चलेंगे। अंडर रूल 164 ऑफ द GFR 2 स्टेज बिडिंग, जो रूल 164 है जो 2 स्टेज बिडिंग है, 2 स्टेज बिडिंग में फास्ट टेक्निकल बिड को एवेल्युएट किया जाएगा। ओके, फर्स्ट टेक्निकल बिड को एवेल्युएट किया जाएगा, जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा, जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा उन्हीं बिडर से फिर उनका फाइनेंशियल बिड को इनवाइट किया जाएगा। साइमल्टेनियसली दोनों बिड्स को इनवाइट नहीं किया जाएगा, फर्स्ट टेक्निकल बिड को एवेल्युएट किया जाएगा, जिन बिडर्स को मिनिमम स्कोर मिलेगा उनका फाइनेंशियल बिड्स को इनवाइट किया जाएगा और एवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए 2 स्टेज दिया है। साइमल्टेनियसली द बिडर्स शुड नॉट सबमिट टेक्निकल बिडिंग एंड फाइनेंशियल बिडिंग, उनको दोनों को सबमिट नहीं करना पड़ेगा, जैसे 2 बिड सिस्टम में दोनों का सबमिट होता है और फर्स्ट टेक्निकल बिड को एवेल्युएट किया जाता है और जिनका टेक्निकल बिड परफेक्ट है उनका फाइनेंशियल बिड को एवेल्युएट करके जो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है एक बिडर को। मगर यहाँ पर वो नहीं होगा, फर्स्ट टेक्निकल बिड को इन्वाइट किया जाएगा, उसको एवेल्युएट किया जाएगा, जिनको मिनिमम स्कोर मिलेगा फिर उनसे उनका जो फाइनेंशियल बिड को इनवाइट किया जाएगा और इवैल्यूएट किया जाएगा। तो अभी आपको आंसर मिल गया। तो आंसर इज 4, ऑब्टेन बिड्स इन 2 स्टेजेस विथ रिसिप्ट ऑफ फाइनेंशियल बिड्स आफ्टर रिसिप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निकल बिड्स। अभी मैं बताया आपको, तो आंसर इज बिट 4। 67 अंडर रूल 22 CCS पेंशन रूल्स 2021 क्लियर, इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट who was required to undergo departmental training before regular appointment to a post and was in receipt of pay in a scale of pay or a stipend during such training, the period of such training shall count as qualifying service। वो होगा क्योंकि वो जैसे यहाँ पर दिया है, कोई डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग ले रहा है, इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज रिक्वायर्ड टू अंडरगो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग बिफोर, रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, रेगुलर अपॉइंटमेंट के पहले वो ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, और उसको स्टाइपेंड मिल रहा है, और वो जो ट्रेनिंग ले रहा है, जो ट्रेनिंग पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ट्रेनिंग के बाद तो ऑटोमेटिकली उसका जो अपॉइंटमेंट होगा रेगुलर अपॉइंटमेंट होगा, और जो ट्रेनिंग वो ले रहा है बिफोर रेगुलर अपॉइंटमेंट, जो ट्रेनिंग ले रहा है बिफोर रेगुलर अपॉइंटमेंट वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। ओके, आंसर इज बिट 1।
68 देखेंगे अंडर द सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944, इफ द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द केस ऑफ ए पेशेंट इज ऑफ सच ए सीरियस नेचर एज टू रिक्वायर मेडिकल अटेंडेंस बाय सम पर्सन अदर देन हिमसेल्फ, he may refer him to a specialist for which approval of which of the following is required। देखिए ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट डिटेक्ट किया कि पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है और वो उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है और कोई स्पेशलिस्ट का ज़रूरत है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, तो जब स्पेशलिस्ट का ज़रूरत होगा वो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट रिफर करेगा कि हाँ स्पेशलिस्ट उसको ट्रीटमेंट करेगा, मगर उस केस में कौन उसको अप्रूव करेगा। तो बेसिकली उसका जो अप्रूवल होता है आपको याद रखना है, अप्रूवल ऑफ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर। ओके, अप्रूवल ऑफ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर है वो अप्रूव करेगा। ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट डिटेक्ट किया कि स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट चाहिए, ओके वो रिफर कर दिया स्पेशलिस्ट को, मगर उसको अप्रूवल कौन देगा ना, जो अप्रूवल कौन देगा ना, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। आंसर इज बिट 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 69 और 2 क्वेश्चन है। इफ द फैमिली ट्रैवल सेपरेटली फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, हाउ कैन द फैसिलिटी ऑफ एडवांस बी अवेल्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इज फैमिली अंडर रूल 15(2) ऑफ द एलटीसी रूल्स 1988। हम जानते हैं एक ब्लॉक में जो हमारा फैमिली मेंबर्स है वो अलग अलग ग्रुप में एलटीसी ले सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में वो ले सकते हैं। तो इस केस में एडवांस कैसे मिलेगा, तो सेपरेटली एडवांस उनको मिलेगा। ओके, अलग अलग ग्रुप में वो जा सकते हैं। सपोज एक ब्लॉक ईयर है, जो सपोज एक ब्लॉक ईयर फर्स्ट जो 4 ईयर ब्लॉक पीरियड होता है ना, वो 2 में डिवाइड हो जाता है। ईच ब्लॉक पीरियड 2 ईयर्स हो जाता है। एक 4 ईयर ब्लॉक को हम डिवाइड कर देते हैं 2 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स। एक में होम टाउन है तो एक में ऑल इंडिया एलटीसी है। तो इसमें जो फैमिली मेंबर्स है वो सेपरेटली एलटीसी ले सकते हैं, और सेपरेटली एलटीसी ले सकते हैं तो वो सेपरेटली एडवांस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। आंसर इज बिट 3, द एडवांस में ऑल्सो बी ड्रॉन सेपरेटली टू द एक्सटेंट एडमिसेबल। आंसर इज बिट 3। आज का लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, no government servant shall, except with the previous sanction of the government, give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority. However, this rule does not apply to। आप जानते हो जो रूल 10 आप देख लीजिए, रूल 10 में क्लियरली मेंशन है कि कोई जुडिशियल इंक्वायरी होता है, जुडिशियल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ठीक है, और कोई इंक्वायरी सपोज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट। इस केस में कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए। सपोज हम एविडेंस के आकार में जाएंगे तो उसमें कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए। और एक बार बता रहा हूँ, जुडिशियल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और है एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट। ओके, आज विटनेस, सपोज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय वांट टू गिव एविडेंस, यहाँ पर कोई परमिशन जरूरत नहीं है। और अदर सब केस में ऐसा कुछ है, कोई सपोज कोई एनी पर्सन के तरफ से आप विटनेस के लिए जा रहे हो, कोई कमिटी के लिए जा रहे हो, कोई अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत है। तो वही दिया है, हाउएवर दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी। मैं बताया था, अब जुडिशियली इंक्वायरी में आप एविडेंस के आकार में जा रहे हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में एविडेंस के आकार में जा रहे हो, और कोई गवर्नमेंट इंक्वायरी है उसमें एविडेंस के आकार में जा रहे हो, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट का कोई इंक्वायरी है उसमें एविडेंस के आकार में जा रहे हो, कोई गवर्नमेंट परमिशन जरूरत नहीं है। और अदर केस में कोई पर्सन के तरफ से आप जा रहे हो, कोई बेसिकली कमिटी के तरफ से जा रहे हो एविडेंस देने के लिए, उसमें गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत है। विदाउट परमिशन आप जा नहीं सकते। तो यहाँ पर दिया है, हाउएवर दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी। ओके, तो वहाँ पर दिया है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट गिव एविडेंस इन कनेक्शन विद एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन, कमिटी और अथॉरिटी। हाउएवर दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी। आंसर इज बिट 4। तो ये 70 क्वेश्चंस था। तो उड़ीसा आदर्श विद्यालय का एग्ज़ाम ये हुआ था अभी 4 अप्रैल में। तो एक मॉडल स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है। आप तो पैटर्न देखा, उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। और कुछ क्वेश्चंस आया था, ऑल इंडिया सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स 1954, वो हमारे लिए लागू नहीं है। हमारा जो है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज टीए रूल्स। तो अदर क्वेश्चन पैटर्न तो बहुत अच्छा था, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। और जो हो हमारा उड़ीसा में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो अच्छा आइडिया मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करो।
So friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru, and also in description box my Telegram link channel is there. Please click on link and join my Telegram channel so that you can get all the videos. So again, thank you, namaskar and pranam to all of you.